Good morning to all of you. That is 30th April, dear. Before 30th April, you need to complete your module 2 along with all exams and quiz which are already activated. जो एग्जाम्स एक्टिवेट नहीं है उसे रहने दो, राइट? बाकी सारी जो एग्जाम्स है वो दे दो जो एक्टिवेटेड है ऑलरेडी. Okay, so in the last lecture we have started the networking, IP addressing, right? So in that we have seen that what is IP address, why it is used for, what is host to host delivery, and what is end to end delivery. We have discussed if its difference, that what is the difference between end to end, which is used in the transport layer, and we can say the host to host delivery, which is provided by the network layer, right? So we have discussed this topics in the previous lecture. Now, continuing with that topic only, that is IP addressing, let's see in more detail. Is my screen visible to all? Yes, ma'am. Okay, so in the last lecture we have discussed all these points, that is glassful addressing. You can see here that IP address, it's a 32-bit address, right, which is used to identify the host on the network. Now, as we know that it's a 32-bit address, and we are dividing this 32 bits into two different parts based on the classes, right? Now, which are these two parts? That is a network ID and the host ID.
Now, if you see network ID represent क्या करता है? It represents the number of the networks, that how many networks are there, right? So network ID represents the number of networks, and the another part, that is the second part, is the host ID, right? So host ID represents the number of hosts on the network. ऐसा कभी नहीं होगा कि होस्ट आईडी का पार्ट पहले आएगा और नेटवर्क आईडी बाद में. सीक्वेंस हमेशा यही रहेगी सारे क्लासेस में. दैट इज द फर्स्ट पार्ट इज द नेटवर्क आईडी ऑलवेज, राइट. कितना पोर्शन है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्लासेस, right? But the first part will always be the network ID, and the second part is the host ID, right? So the we can say that it represents the number of hosts on the network. Now it's a 32-bit long. So 32-bit, that means we can say it's a 4 byte. So we have discussed that 1 byte is equals to 8 bits. So 4 bytes, 32 bits. So we can also say like that IP address, it's a 4 byte address, or we can say it's a 32-bit long, right? So it's a 4 byte. Now, if we look at the classful addressing, the most important concept of IP addressing is the classful addressing, right? Now, if I say about the classful addressing, so first thing we can say that it mainly consists of 5 classes, जिसके अंदर 5 classes है, right? Class A, Class B, Class C, D, and E, right? Now, all these 5 classes have, we can say, different portions of the network ID and the host ID. So, as you can see here, I have already draw the diagram for the same. So you can see here for the class A, the 8 bits of network ID is there, and rest of 24 bits is the host ID. So you can see here कि जो फर्स्ट 8 बिट्स है वो नेटवर्क आईडी के रहेंगे. सो दैट इज द पोर्शन ऑफ द नेटवर्क आईडी, एंड रेस्ट ऑफ द बिट्स, यानी कि 32 में से हम लोग 8 निकाल दे, सो 24 बिट्स बचते हैं. सो दैट होल 24 बिट्स इज ऑफ होस्ट आईडी, right? So that is the case in the class A. Now let's see the class B. So you can see here 16 bits of network ID and 16 bits of host ID is there. Same for class C, 24 bits of network ID and 8 bits of host ID. Class D is used for multicasting, right? Which is where there are multiple computers, which is used to cast the IP addresses to all the computers which are there on the network. Class E is reserved. अभी यहाँ पे reserved किसके लिए है? So as I have said that it is used for the development and the research purpose. So that's why this class E is reserved for that, right? यहाँ पे जितने addresses है वो development और research purpose के लिए use किए जाते हैं, right? Now if I say about the classful addressing, let me just show you one diagram. पर diagram तो yes यही है. Okay. So class A, if I talk about the class A, so it will start from 0, right? यहाँ से ये 0 से start होगा. The first bit is set to 0 here. अभी यहाँ पे 8 bits है. Network ID का कितना part है? 8 bits. So it will be in a range of 0 to 7, right? 0 to 7 में 7 की range में lie करता होगा. That means 0 to 7 is the 8 bit. But first bit है that is a 0. So बाद में कितने bit बचते हैं? 8 minus 1, 1 एक बीट है वो फिक्स कर दिया है, दैट इज सेट टू 0 हियर. सो लास्ट 7 बीट बचते हैं, सो इट विल बी इन पावर ऑफ 2. सो 2 raised to 7 इज इक्वल्स टू 128. सो ये क्या हो गया हमारा नेटवर्क एड्रेस, राइट? क्योंकि हमने नेटवर्क आईडी से वो कैलकुलेशन फैच की है. सो इट इज अ नेटवर्क एड्रेस. Now last 24 bits, so it will be in the power of 2. So 2 raised to 24, right? Whatever the value that comes, that is the host address. Now same for class B, but here we are setting the octet value as a
10, राइट, क्लास बी के लिए 10, फिर क्लास सी के लिए 110, क्लास डी के लिए 1110, राइट। तो ऐसे वैल्यूज सेट की जाती है एंड बेस्ड ऑन दैट द कैलकुलेशंस आर डन। नाउ इफ वी talk about the class B, so you can see here 16 bits of network ID, 16 bits of host ID is there, right? But from this 16 bits, the 2 bits are set, that is 1, 0. यहाँ पे 0 set किया था, यहाँ पे 1, 0. Now out of the 16 bits, 2 bits are set, so we'll remove 2 bits from that. कितने बचते हैं? 14. So 2 raised to 14, that will be the network address of class B. And 2 raised to 16, that will be the host address of class B. Same for class C also we can do the same thing, right? यहाँ पे 3 bits set होंगे, 1, 1, 0. So out of 24, remove the 3 bits, so that is 21. So 2 raised to 21, that is the network address of class C, and 2 raised to 8, that is the host address of class C. Now for class D, the values are, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इतना पोर्शन है वो नेटवर्क आईडी का है और इतना पोर्शन है वो होस्ट आईडी का है, बट हियर वी आर कंसिडरिंग कि जो भी वैल्यूज, जो भी बिट हमने पहले सेट करते हैं, दैट विल बी एज इट इज एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शन विल बी ऑफ होस्ट आईडी, राइट। वो होस्ट यूज कर सकता है इन केस ऑफ क्लास डी एंड क्लास ई। So here we are setting the 4 values 1, 2, 3, 4, 1110, right? And rest of the portion, that is a 28 bit used to identify the host on any network. If we talk about the class E, then it is set to 1111 and rest of 24 bits is used for the development and research purpose, right? So this is all about, we can say, class A, B, C, D and E. तो यहाँ तक क्लियर है? This is all about the revision part that we have already discussed yesterday. Okay, now let's move to the ranges. अभी ये ranges क्या होता है यहाँ पे? Now, for every 5 classes, there are different range. Now, if I talk about the class A, अगर class A की बात करते हैं, so यहाँ से start कहाँ से होता है? If we talk about the class A, then the range of the class A is 0 to 127, right? वो 0 से start होगा और 127 पे खत्म होता है. Then if we talk about the class B, then it will be from 128 to 191. These are already predefined. ये already predefined ही है, right? ये सिर्फ आपको याद रखना है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइन किया गया है कि भाई ये रेंज से ये रेंज तक अगर आईपी एड्रेस होगा, सो इट विल बिलोंग्स टू द क्लास ए. देन फॉर क्लास सी द रेंज इज 192 to 223. Then for class D, 224 to 239. And for class E, 240 to 255, right? So the whole IP address, we can say all the classes, or we can say the whole IP address lies in the range of 0 to 255.
ऐसा बोल सकता है, राइट? ओके, sorry for the inconvenience caused, as there is a throat problem, so I cannot speak continuously. Okay, so we can say like the whole IP address lies in the range of 0 to 255, right? Now, अभी question कैसा आ सकता है एग्जाम में? Let's say that if I say like uh, if I say that this is the IP address, right? Now identify that this IP address belongs to which class. So can you just identify that this IP address belongs to which class? बता सकता है कोई? Yes, very good. Class B, right? So 132 कौन सी रेंज में लाई करता है? That is in the class B. तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं MCQ बेस्ड के, राइट? कोई IP एड्रेस दिया होगा, बट फॉर दैट टू आइडेंटिफाई that this IP address belongs to which class, that you need to remember the ranges of all the classes, right? ये सारी रेंज आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई ये आईपी एड्रेस है वो कौन से क्लास का है, राइट? सो जो आपकी मिड टू एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड है, सो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, राइट? सो जस्ट प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऐसी कैलकुलेशन भी पूछी जा सकती है, राइट? कि क्लास ए है तो उसमें नेटवर्क एड्रेस कितना होगा, होस्ट एड्रेस कितना होगा, राइट? दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड इन दी एग्जाम। सो ऐसे एमसीक्यूज बहुत सारे बन सकते हैं, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, राइट? So this is all about the IP addressing. Now, to remember this, I have one table for you. वहां से आप directly अच्छे से values याद कर सकते हो. Let me just paste that table here. Okay, so you can see here, this is the table. So ये table आप याद रख सकते हो. Class A, B, C, D and E. लीडिंग बिट्स, जो बिट्स ऑलरेडी सेट की गई है, जो आगे रखी गई है, दैट इज बिट्स, दैट इज 0 1 0 1 1 0, जैसे हमने देखा 0 1 1 0 1 1 1 0 ट्रिपल 4 times 1, राइट?
So leading bits, network bits, that is network ID कितने हैं, host ID कितने हैं क्लासेस के हिसाब से, राइट और कितने नेटवर्क्स बनेंगे, कितने होस्ट बनेंगे, कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे इन द नेटवर्क, दैट ऑल कैलकुलेशंस आर गिवन इन दिस टेबल। स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा क्लास ए के लिए, एंडिंग एड्रेस क्या होगा, राइट यहाँ पे मैंने रेंज ऑलरेडी लिख के दी गई है, बट यू कैन रिमेम्बर लाइक 0 to 127, then 128 to 191, 192 to 223, 224 to 239, 240 to 255, राइट ये रेंज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे जो दिया है वो एक्स के फॉर्म में दिया है, राइट। So you can use both the things as a reference, right? So this is, you need to understand as well as you need to remember when such type of questions are asked in the exam, right? So this is all about the IP addressing. Now let's move forward. तो अगर पीपीटी के हिसाब से देखा जाए तो पीपीटी में यहाँ से आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है, बट मैंने वन नोट में पूरा एक्सप्लेन किया है अपने हिसाब से, कंसेप्ट सारा वही है, राइट बट यहाँ पे थोड़ी थियरीज दी गई है। तो यहाँ पे दिया है कि आईपी एड्रेस को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉटेड डेसिमल, दैट मींस दैट द आईपी एड्रेस दैट वी आर यूजिंग फॉर वी कैन से कोई सिस्टम को अगर हम आईपी एड्रेस देते हैं तो वो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में होता है, राइट वी आर जनरली यूजिंग 192.168.1.1, राइट सो दैट इज इन द डॉटेड डेसिमल फॉर्म। अगर बाइनरी है तो बाइनरी में कैसे होगा कि जो फर्स्ट बाइट है उसमें 8 बिट्स होंगे, 00001011110000, राइट तो ऐसे 8 बिट 888 टोटल 32 बिट्स होंगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 and 0, राइट सो सारी वही चीजें हैं बट थोड़ा थ्योरेटिकल दिया गया है। यू कैन सी हियर जो हमने वन नोट में देखा वही सारी चीजें यहाँ पे है, तो आप दोनों का रेफरेंस ले सकते हो। आई विल अपलोड बोथ वन नोट एंड पीपीटी, राइट क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, बट थोड़ा थेरिकल दिया है, हमने वहां पे डायरेक्टली समझ लिया था, राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास ए बी सी डी ई, that is already explained in this note. तो आईपी एड्रेसिंग क्लियर है पूरा? If you have any doubt in the IP addressing, you can ask me right now. We have spare 1.5 lecture for the IP addressing. Okay, now moving forward. Okay, now subnet mask. So सबनेट मास्क ये जो टर्मिनोलॉजी है आपने बहुत बार सुनी होगी लैब सेशंस में, राइट लैब सेशंस में जब भी हम कोई नेटवर्किंग को डिवाइसेस लेते हैं, वी आर असाइनिंग एन आईपी एड्रेस, देन वी क्लिक ऑन टैब, सबनेट मास्क इज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड। तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कैसे होता है, राइट सो लेट्स सी कि सबनेट मास्क क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से कि जो 32 बिट IP एड्रेस है, इट्स अ IPv4 एड्रेस। वी ऑल नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेस, IPv4 एंड IPv6, राइट जो हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज IPv4 32 बिट एड्रेस दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, network part and the host part, that we all know, right so we can say components consist of two parts, that is network part, host part. To identify which part of an IP address is the network part and which part of the IPv4 address is the host part, we need another identifier which is known as the subnet mask, right so उसके लिए हमको कैसे पता चलेगा कि भाई कोई एड्रेस दिया गया है, राइट तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो पार्ट है वो नेटवर्क का है, ये जो पार्ट है वो होस्ट का है।
रेंज के ऊपर से बता सकते हैं, बट देर इज ऑल्सो वन थिंग दैट इज अ सबनेट मास्क. फ्रॉम दैट वी कैन आइडेंटिफाई that which part is the network and which part is the host, right? So IPv4 address, we can say it's a combination of two things, IPv4 address and subnet mask, and it's a 32-bit number, where one thing we can say, where all the bits of the network part are represented as 1 and all the bits of host part are represented as 0. Now if we talk about the class A, सारे जो नेटवर्क पार्ट है उसको 1 रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट? और सारे जो होस्ट पार्ट है उसको 0. अभी 1 रिप्रेजेंट करते हैं, सो कौन से फॉर्म में होगा वो? लेट्स से कि अगर कोई आईपी एड्रेस है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में आईपी एड्रेस लिख रही हूँ, right? So first byte, that is 8 bits. अभी ये जो बाइनरी वैल्यू होगी वो क्या होगी? यहाँ पे हम क्या काउंट करेंगे कि यहाँ पे जो 0 वैल्यू है वही हम काउंट करेंगे. So that is 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6. 2, 3, 4, 5, 6 and 2 raised to 7. So 2 raised to 7 कितना होगा? 256, right? 2 raised to 7 कितना होगा? 128. So one thing we can say कि यहाँ पे जो 0 है वो हम काउंट नहीं करते, बट जहाँ पे 1 1 1 1 1 1 दिया होगा वही चीज हम काउंट करते हैं, राइट? सो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी नेटवर्क आईडी का जो पोर्शन होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 1 एंड वॉट एवर द होस्ट पार्ट विल बी देयर दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज 0. अभी ये सारी वैल्यूज मैंने 1 1 1 1 1 1 कर दी, तो उसकी वैल्यूज क्या होगी? 255, right? So if we talk about the class A, so class A में network ID कितना है? That is first 8 bit, right? So that will be 255 और बाकी के जो 3 bits है, that is the host part, that is represented as 0 in case of a subnet mask, right? So let's say कि मैंने यहाँ पे IP address कुछ ऐसा लिखा, one nine two dot 168.1.1. तो उसका सबनेट मास्क जनरली क्या होगा? 255.255.255.0, राइट? सो 192.168.1.1 ये कौन से क्लास का है? दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू विच क्लास? Yes, obviously class C, right? Because that lies in the range of this, that is 192.2.223, right? So ये क्लास C का होगा. So उसका सबनेट मास्क क्या है? 255.255.255. क्यों? क्योंकि क्लास C में जो 3 पोर्शन है दैट इज ऑफ नेटवर्क आईडी 1, 2 एंड 3, राइट? तो जितने भी नेटवर्क आईडी होंगे, जितना पोर्शन नेटवर्क आईडी का होगा वो सारे बिट्स क्या होंगे? 1 1 1 1 1, राइट? और जितना भी होस्ट पार्ट होगा दैट विल बी a 0. So here the IP address that is
192.168.1.1. This is the IP address and that belongs to class C. So class C में 3 पोर्शन है वो नेटवर्क आईडी के है. So that will be 255, 255, 255. जितने पोर्शन नेटवर्क आईडी के होंगे वो 1111 रिप्रेजेंट किए जाएंगे और जितने पोर्शन होस्ट के होंगे that will be represented as 0. राइट. सो अगर ये सारे मैंने 1 कर दिए 1 1 1. तो अगर ये पूरे को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 255. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रही हूं? ये सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो क्या आता है? जस्ट लुक एट दिस और बोलो कि समझ में आया या नहीं. This is the 8-bit binary number 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट. अभी इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. राइट. ये तो पता है कि डेसिमल और बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. राइट. ये जो दिया गया है वो बाइनरी में दिया गया है. राइट. नाउ आई वांट टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डेसिमल. डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना आता है? यस, प्लीज लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स. हाँ. तो डेसिमल को अगर बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, कैसे कन्वर्ट होगा? ऑब्वियसली इट विल बी इन द पावर ऑफ 2. राइट. अगर ये सारी वैल्यूज 1 है और मैंने उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है? दैट इज 255. अभी यहाँ पे सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे क्लास ए है. तो क्लास ए में नेटवर्क आईडी का पोर्शन कितना है? दैट इज दिस पोर्शन ओनली. सिर्फ एक ही बाइट होगा, बाइट 1. 1 बाइट विल बी देयर, दैट इज ऑफ नेटवर्क आईडी. तो अगर एक बाइट है सो दैट इज ऑफ 8 बिट्स. इसमें सारे क्या होंगे, जितने भी नेटवर्क आईडी का पोर्शन होगा वो सारे 1 होंगे. So that will be the subnet mask, right, for class A. So class A के लिए subnet mask क्या बनेगा? That is पहला तो बन गया, that is 255. नेटवर्क आईडी का जो पोर्शन है वो मैंने सारा 11111 कर दिया. राइट. अभी जो होस्ट पार्ट है, होस्ट पार्ट जो है वहां पे सारे बिट्स क्या होंगे? 0. तो ये 3 पोर्शन है वो होस्ट पार्ट का है. राइट. बाकी के जो 3 पोर्शन है दैट इज ऑफ होस्ट पार्ट. तो वो क्या होंगे? 0. तो 0 0 0. राइट. तो ये सारा क्या होगा? 0. तो हमारा सबनेट मास्क क्या बनेगा? 255.0.0.0. राइट. सेम फॉर क्लास बी सबनेट मास्क कैलकुलेट हो सकता है. क्लास बी में क्या है? फर्स्ट 2 पोर्शन इज ऑफ नेटवर्क आईडी.
Let me just take this. So in the class B, first two portion is of network ID. So first two and the last two is of host ID, right? So यहाँ पे first two network ID है, यानी कि ये सारे bits क्या होंगे 1, और ये होस्ट वाले 0, राइट? तो यहाँ पे 111 है, दैट मीन्स ये क्या होगा 255.255.0.0, राइट? तो जैसे ही हम लोग सिस्टम पे आईपी एड्रेस टाइप करते हैं, वो तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई ये आईपी एड्रेस है वो कौन से क्लास का है, और उस हिसाब से प्रोग्रामिंग की होती है कि जो भी क्लास का होगा उस हिसाब से सारे नेटवर्क आईडी का जो पोर्शन है वो सारे बिट्स 1 कर दिए जाएंगे, और जो होस्ट आईडी का पोर्शन है वो सारे बिट्स 0 कर दिए जाएंगे। अभी 1 है तो ऑब्वियसली उसका डेसिमल 255 होगा, राइट? और 0 है तो उसका कैलकुलेशन 0 होगा, राइट? तो उस हिसाब से सबनेट मास्क ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है कि सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन मिल जाती है? दैट इज वेरी सिंपल, राइट? सिर्फ याद कितना रखना है that all the network parts are represented as 1 and all the bits of host part are represented as 0. सिर्फ यही चीज याद रखनी है, राइट? बट उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लास ए में नेटवर्क पोर्शन कितना है, क्लास बी में नेटवर्क पोर्शन कितना है, और क्लास सी में नेटवर्क पोर्शन कितना है। इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई इसका सबनेट मास्क क्या होना चाहिए, राइट? सबनेट मास्क करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो नेटवर्क पार्ट होता है वो सारे बिट्स 1 होते हैं, और जो होस्ट पार्ट होता है वो सारे बिट्स 0 होते हैं, राइट? तो यहाँ तक क्लियर है सबनेट मास्क? यस दर्शन? ओके गुड। तो अगर लेट्स से कि एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा दैट इज ऑफ, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस दिया, सो इसका सबनेट मास्क क्या होगा? Just let me know in the chat box. अगर समझ में आया है तो बता सकते हो इसका आंसर। यस ऑब्वियसली पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई जो ये आईपी एड्रेस दिया गया है वो कौन से क्लास का है, राइट? तो ये कौन से क्लास का है? बेस्ड ऑन द रेंज वी कैन आइडेंटिफाई दैट दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास बी, बिकॉज 168 से स्टार्ट होता है एंड 168 लाइज इन दिस रेंज, सो क्लास बी का है, दैट इज क्लियर।
अब क्लास बी में नेटवर्क आईडी कितना है और होस्ट आईडी कितना है? So network ID 16 bits, host ID 16 bits. That means 2 parts of network ID and 2 parts of host ID. अभी 2 parts है, so we can directly say कि भाई 2 part network ID का है, that means 255 और 255 इतना फिक्स हो गया, राइट? बाकी के जो पोर्शन है वो होस्ट आईडी का है। जो होस्ट आईडी है वो सारे बिट्स क्या करने हैं हमको? 0 while calculating the subnet mask. So it will be 255.255.0.0, right? That is as simple. Okay, so ये समझ में आ गया पूरा, right? IP address and its subnetting. So PPT में ऑलरेडी कुछ थियरीज दी गई है, यू कैन यूज इट फॉर योर रेफरेंस, राइट? बाकी कंसेप्ट वही का वही है। ओके, नाउ नेटवर्क एड्रेस। तो नेटवर्क एड्रेस क्या बोल सकते हैं? दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सबनेट दैट अ होस्ट मे बी प्लेस्ड ऑन, राइट? एंड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दैट नेटवर्क, जो वो पर्टिकुलर नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, right? So network address we can say it's the very first address of an IPv4 address block. For example, let's say that 10.0.0.0 is the network address of all IPv4 address starting from 10.0.0.1, right? मैंने suppose यहाँ पे लिखा कि 10.0.0.0, तो वो क्या होगा? That will be the starting address, राइट? वो एक स्टार्टिंग एड्रेस होगा। जो भी एड्रेसेस 10.0.0.1 से स्टार्ट होंगे, दैट लाइज वी कैन से दैट इज ऑफ 10.0.0.0 ओनली, राइट? एंड उसका वी कैन से कि भाई क्या बोल सकते हैं कि सबनेट मास्क क्या होना चाहिए? 10.0.0.1. So obviously it is of class A, right? This IP address falls under the class A. So उसका सबनेट मास्क क्या है? 255.0.0.0, right? So that is all about the network address. Okay, time for attendance. AI.
AI1, 2, Present, ma'am. 3, 4, Yes, ma'am. 5, Yes, ma'am. 7, 8, 10, Present, ma'am. 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, Ma'am, 20 present, present. 22, Present, ma'am. Ma'am, 21 is present. 24, Present, ma'am. 25, 26, 27, Yes, ma'am. 28, Present, ma'am. 29, Present, ma'am. 31, Yes, 32, ma'am. 33, 34, 35, 36, 37, Present, ma'am. 38, 39, Yes, 38 ma'am. present, 40, ma'am. 45, 40 present. Yes, ma'am. 46, 47, Present, ma'am. 48. Okay, 35 is there. 38 is already present. 48 is plus 49, 50, 51, 52, Present, ma'am. Present, ma'am. 53, 54, 55, Present, ma'am. 56, Yes, ma'am. 57, 58, 59, Ma'am. yes, 60, 61, 62, Ma'am, 63, AI 58 also. 64, Present, madam. 64. 65, Present, ma'am. 67, Present, ma'am. 68, 69, 71, Yes, ma'am. 72, 73, D to D1, 2, 3, Present, ma'am. 4, 5, 6. Present, ma'am. Check these numbers on the screen. Let me know if I mistakenly marked you as absent. D to D4. Okay, और कोई? Okay, big data students. Big data 1, 2, 3, 4, Ma'am, 12 present. Only 2 and 12. 2 and 12. बाकी सब absent है. Yes, ma'am. Why big data students are not coming in the class? What is the reason? वो तो मुझे पता नहीं वो मैम. Manthan and Manav. Okay. Okay. You may leave.